so many. I cannot complete everything, so because there are so many things. So it will prove that yes, Bengal is going ahead, and I am proud to say that Bengal is #1 in so many sectors. And earlier it was just like number 30 or number 35. Some people are coming from Delhi, I am sorry to say, if I do any wrong, I will apologize to them. But please correct me. Why you are saying all the telling garbage of lies to the people? Tell the truth. Tell the truth. I am proud to say, MSME we are #1. Skills sector we are #1. Road sector we are #1. Bangla Awas Yojana we are #1. Technical study we are #1. Our talent and our this research, all these. Now can you imagine if I give you one figure, what matters for the humanity? When we came in, the institution delivery rate was 65%, and within these 8 years, it is 99%. This is the social sector. How we are giving the social service to the people? Health, free for all. Food, free for all. Education, from Kanyasri to Shikkasri to Oikosri to so many. Even I am proud to say that Kanyasri have got United Nations Public Award Prize. And also my this Shabuj Sathi, we give cycles. More than 1 crore students. And this time also I am giving the tab to the students, about 12 lakhs. Don't you think this is a social work we are doing? If a baby born, then also we give a good tree, good plantation tree. If somebody die, they didn't have the money for cremation, there also we give the money. So from born to death, A to Z, we are working, and our social security scheme, it is 99% we are giving the infrastructure, we are giving the benefits to the individual beneficiaries. So I am proud to say Bengal is going ahead, and some people are jealous. They cannot unite the country. They only can divide the country. They only can divide the rules. Even I am sorry, again I am repeating the word. Last year also I said, earlier also. Why Jesus Christ's birthday will not be declared as national holiday? You tell me, it was there earlier. Why this government, BJP government, withdraw that? Everybody is having their sentiment. If I ask my Christians people whether they didn't have the sentiment, in our state it is chutti. But this government, BJP government came and they cancelled this. Why? Why? What is the harm of the Christian people? This festival, it is celebrated throughout the world. All over the world. This time, yes, there are some problems because of COVID pandemic. That we have to wear the mask, that we cannot gather together, so there we have to maintain the physical distancing, that's okay. Earlier I have seen so many children, they should have come to meet me. But this time it has been avoided because of their health hazards program. So it's good. So I am in favor of unity. Whatever it comes. Father says about the constitutional obligation. Of course, we respect our constitution. We love our constitution. It is our pillar. But can you tell me whether this constitution has been thoroughly nurtured and accepted, and in real sense, secularism is in India? No. I'm sorry to say, it is typical type of religious hatred policy is going on. I want to condemn this today because it is a place where I can raise my voice. With these words, I thank you so much for giving me this opportunity. I convey my great regards to Australian brothers and sisters
for his coming. You asked me the time also, but because of the year ending, there are some problems, so I'm sorry. I apologize for this. And also my UK friends and other friends are also there from embassy. Thank you so much. Thank you so much. And thank you so much. Joy Hind and Joy Bangla. And victory of Jesus Christ, we will remember. We will remember. We will remember. Now may I request Indranil Sen? 2 songs, Bengali songs especially. Carols we know so many. But Bengali songs like Mongolo Dipo Jele, Ami Ondhokarer Jatri, অথবা বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু, এটা না শুনলে আমার মন ভরে না, শুনতেই হবে। ইন্দ্রনীল, কাম অ্যান্ড জয়েন। নো, নট জয়েন, ইউ সিং। থ্যাংক ইউ। এটা ভালো লাগবে, এটা রাখো হাতে, লাগবে লাগবে। Hello, hello. In spite of my repeatedly writing to the government कि अन्नदाता के पेट पर इतनी बड़ी लात क्यों मारी जा रही है, जब पूरे देश में 10 करोड़ किसानों को यह फायदा मिल रहा है, करीब 1 लाख करोड़ का फायदा देश में किसानों को मिल चुका है, तो पश्चिम बंगाल के किसी भी किसान को यह फायदा क्यों नहीं मिला? यह किस प्रकार का कन्फ्रंटेशन है? यह मैंने लिखा, कई बार लिखा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। स्कीम के लागू होने के 20 महीने बाद माननीय मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा केंद्रीय कृषि मंत्री को। उस पत्र को पढ़कर मैं बिल्कुल चौंका गया। आई वॉज डिस्टर्ब्ड। हम कहां रह रहे हैं? हमारा क्या मानस है? हमारी क्या नियत है? उस पत्र में लिखा गया कि ये पीएम किसान निधि का पैसा जो सीधा बैंक टू बैंक किसान के खाते में जाता है, बिना कट के जाता है, बिना एजेंट के जाता है, बिना इंटरमीडिएट के जाता है, और सफलतापूर्वक पूरे देश में जा रहा है, और पूरे देश का किसान इससे हर्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा, वो पैसा हमें दे दीजिए, हम बांटेंगे। क्यों? किस लिए? जब पूरा देश एक तरफ चल रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, आप उल्टी दिशा में क्यों चलना चाहते हैं? जो सीधा मिल रहा है उसके बीच में सरकार क्यों बिचौलिया बनना चाहती है? क्यों सरकार इंटरमीडिएट बनना चाहती है? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आपके राज्यपाल ने इस विषय में मुख्यमंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखा। सब पहलुओं का मैंने जिक्र किया, उनका कोई जवाब नहीं है। किसान के लिए घड़ियाली आंसू कभी नहीं बहाया जा सकते। It is very painful when we have such crocodile tears for the farmer after injuring his interest for no other reason
want to tell friends in the media, कोविड के दौर में भारत सरकार की एक स्कीम एग्री सेक्टर के लिए आई। फाइनेंशियल स्प्रेड था 3.5 लाख करोड़। 3.5 लाख करोड़ में पश्चिम बंगाल की भागीदारी 35,000 करोड़ के करीब होती। पीएम किसान निधि में तो डायरेक्ट बेनिफिट है, सब्सिडी का कोई एलिमेंट नहीं है, किसान को कभी वापस नहीं देना पड़ता है। वो लाभ तो पश्चिम बंगाल के किसान की पेट पर पड़ गई जब उनको 8,400 करोड़ से ज्यादा का लाभ मिल सकता था, नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? एक छोटा सा कदम उठाना था, सर्टिफिकेशन का। उसी तरीके से इस 35,000 करोड़ के पैकेज में जो हमारा लाभ था, हम वंचित रह गए। मेरा यह मानना है, राजनीति कोई कैसे करता है मेरा सरोकार नहीं है। सत्तारूढ़ दल हो, प्रतिपक्ष का दल हो, खुलकर राजनीति करें, अपने हिसाब से करें, अपने विवेक से करें, अपने नियमों से करें, मेरा कोई सरोकार नहीं। और जब सत्ता का संचालन होता है, सत्ता के संचालन में 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, भारत के संविधान और रूल ऑफ लॉ, उसमें डिपार्चर नहीं हो सकता। एंड सेकंड, पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये इस दायरे में आता है। मेरा अनुरोध रहेगा कि हर संभव तरीके से, कैन वी हैव प्लीज साइलेंस, और इज देयर अ प्रॉब्लम? मेरा ये हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, इट इज हाई टाइम वी गिव अप कन्फ्रंटेशन where public interest is casualty. We cannot afford to do it. The second important aspect is political confrontation. I am not concerned, but I am seriously concerned where there is confrontation with the Constitution. We all are obliged to act in accordance with the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के खिलाफ भी हमें नहीं सोचना चाहिए। मन को पीड़ा होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सप्रेस प्रोविजंस के विपरीत विचारधारा को प्रोत्साहित किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ा कदम है। संविधान निर्माताओं के विवेक का निचोड़ है, भारत के संविधान की आत्मा है। इस आत्मा के साथ चीरफाड़ करना, इस आत्मा पर कुठाराघात करना, आक्रमण करना, प्रहार करना गलत है। और यहां राज्यपाल का दायित्व है, क्योंकि राज्यपाल की शपथ है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे समझ में नहीं आता किस विवेक से, कौन से दृष्टिकोण से
देश के एक नागरिक को प्रांत में कहा जाएगा आउटसाइडर। यह संस्कृति अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो ऐसा कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, भारत के संविधान को पढ़ें, समझे, मूल भावना को समझे, लेटरल स्पिरिट को अप्रिशिएट करें, एंड दे फॉल इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। एक जो चिंता का विषय है, गंभीर चिंतन का भी है। जब भी राजनीतिक कदम सत्तारूढ़ दल के खिलाफ या सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के विपरीत या सत्तारूढ़ दल से अलग हटकर राज्य में कोई राजनीतिक कार्यकर्ता करता है, उस पर संकट के बादल मंडराने लग जाते हैं। और वो संकट है कि राज्य का पुलिस प्रशासन पूरी तरह राजनीति से प्रेरित होकर राजनीतिक आकाओं के इशारों पर उन पर प्रहार करने को तैयार हो जाता है। यह प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कानून के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकारी तंत्र का, पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का यह आचरण विधि विरुद्ध है, अपराध की श्रेणी में आता है। सरकारी कर्मचारी पुलिस में हो या प्रशासन में हो, राजनीतिक कार्य नहीं कर सकता। लाजमी रूप से सरकारी कर्मचारी को सरकारी कार्य ही करना पड़ता है और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, राजनीतिक निष्पक्षता का परिचय देना होता है। ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास अनेक प्रतिवेदन इस मामले में आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान कुछ दिन पहले मैंने राज्य के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने जो मेरे को लिखा, उसके संदर्भ में मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया। एक दूसरे राजनीतिक कार्यकर्ता जो संसद सदस्य है, सुनील मोंडल जी, और जो पहले भी रह चुके हैं, उन्होंने भी उसी प्रकार की बात की। मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, संविधान के अनुरूप काम करने के लिए, रूल ऑफ लॉ के रास्ते पर चलने के लिए यह जरूरी है कि राजनीति से प्रेरित होकर राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपोनेंट्स के ऊपर इस प्रकार का आक्रमण नहीं किया जाए। ये प्रजातंत्र को इतनी बड़ी चुनौती है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस और प्रशासन को भी मेरा आग्रह भी रहेगा और कानून की चेतावनी भी रहेगी। कानून उनको इस बात की इजाजत नहीं देता है। कानून के रास्ते पर ही चलना उनका धर्म है, उनका उत्तरदायित्व है। इससे भटकना उनके लिए घातक हो सकता है और उनका कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। आज ही मैंने
राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को निर्देश दिया है। मेरे लगातार मांगने के पश्चात भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर ज्ञानवंत सिंह की इंक्वायरी के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। लंबा चौड़ा खर्चा उन पर हो रहा है। All of them must remember and never forget they are public servants. महज ये सोच लेना कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, they have some unqualified authority not to be accountable, ऐसा नहीं। They are public servants. They are liable for their acts of omission and commission. And it is high time. And prosperity, with all-round safety and good health, harmony and compassion. We pray on this holy and silent night for your special blessings and favors upon our dear Honorable Chief Minister Mamata Banerjee and all her ministers and officials, that they may continue to serve the people of Bengal with dedication and compassion. May the many welfare projects initiated by our Honorable Chief Minister Mamata, vital stakeholder in democracy. You are pillar of democracy. Formation of democratic government depends on your freedom. You are custodian of your own freedom. In the entire exercise, you must play your role so that we have free, fair, fearless elections so that our democracy can flourish. हम पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, राज्यपाल का कोई सरोकार नहीं है। चुनाव का नतीजा क्या होता है, आई एम नॉट कंसर्न। चुनाव का नतीजा कैसे होता है, आई एम कंसर्न। और यह नजारा मैंने खुद देखा। आई वेंट टू डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर में मेरी विजिट पूर्व निर्धारित थी, सरकार की जानकारी में थी। खास कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज्यपाल को प्रोटोकॉल क्यों फॉलो करेगा? लगता है वहां देश का कानून ही नहीं चलता है। प्रशासन भूल गया पूरी तरह से कि राज्यपाल के लिए कोई प्रोटोकॉल भी होता है। बहुत गंभीर बात है। There was not even a guard of honor. क्या पश्चिम बंगाल को जागीर भी बांट दिया गया है? क्या डायमंड हार्बर किसी की जागीर है? The district magistrate 24 Pargana South has been indicated by me, and I am seeking from the government explanation. ये क्यों हुआ? फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया, कुछ ऐसी जानकारी है जो वर्तमान में आपसे मैं शेयर नहीं कर सकता। I don't want to generate unnecessary controversy and sensation. पर जिलाधीश यदि अगर अपना मार्गदर्शन आदेश उस व्यक्ति से लेगा जिसका संविधान में कोई स्थान नहीं इसके लिए, वो बहुत बड़ी गलती करता है। और ये गलती डायमंड हार्बर की यात्रा के दौरान मैंने देखा। व्यवस्था में होकर
मुझे वहां कहना पड़ा, एज गवर्नर टू प्रोटेक्ट, preserve and defend Constitution, I will make Diamond Harbour as a test case. It will not be allowed to be Jagir of someone else. It is part of the state of West Bengal to be run in accordance with rule of law and Constitution. जब एक जूनियर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नुमाइंदगी कर मेरे को दिखा, मैंने कहा यू सी मी, वो नहीं आया। जो एडिशनल एसपी ड्यूटी पर थे उन्होंने फोन किया, वो हजूर तशरीफ नहीं लाए। मेरे एडीसी ने फोन किया, आर वी नॉट लिविंग इन अनार्की, टोटल लॉलेसनेस? तब मुझे वो बयान याद आता है कि ये तो खास व्यक्ति का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कोई कैसे गया। माई हेड इज इन शेम एट सच डेवलपमेंट्स। Lastly, I would urge the media